Hello everyone and welcome to virtual classes. I'm Anisha. So in this video we are going to start new chapter, that is chapter number 8, okay? Unity in diversity or many in the one. So hello everyone. So आज इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपका, जो थीम सी के अंदर आता है सोशल साइंस का। तो चैप्टर का नाम है Unity in diversity or many in the one, and yes, I'm going to explain both in Hindi as well as in English. So here let us start by reading a beautiful lines by Rabindranath Tagore. तो यहाँ पे हम एक स्टार्ट कर लेते एक चैप्टर को। ये एक अच्छी सी लाइन है जो कि लिखी हुई है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं आइए समझते हैं। Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many. So what he is trying to say here is that, see, we have so many people in our country, isn't it? He is granting a wish that let him be able to help the one. Okay, despite there are so many people in this world, let him feel the pain of each and every one. Okay, each and every one, and let him be able to help that very person. Despite there are so many other people, let him feel the pain of each and everyone. That is what he is trying to say here. तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे, ये बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो एक प्रेयर ग्रैंड कर रहे हैं भगवान से कि वो एक हर व्यक्ति का जो बहुत सारी भीड़ में भी वो उस व्यक्ति की पीड़ा, उस एक व्यक्ति की पीड़ा को वो जान सके, पहचान सके, ताकि वो उसको हेल्प कर सके। मतलब वो हर एक व्यक्ति का पीड़ा को वो जानना चाहते बहुत सारी भीड़ में भी। ओके, अगर बहुत भीड़ भी है तो भी वो ये विश ग्रैंड कर रहे हैं कि वो हेल्प कर सके और उस एक व्यक्ति की पीड़ा को वो जान सके और महसूस कर सके और हेल्प कर सके। ठीक है, और दूसरा लाइन देखते हैं जो कि श्री औरोबिंदो जी ने लिखा हुआ है। The principle of unity in diversity, which has always been normal to India, and its fulfillment, the fundamental course of our being and its very nature, and in many the one would place her on the sure foundation of our swava and swadharma. See here, what is the name of this chapter? Unity in diversity or many in the one. See, unity in diversity. Say, as India is a very diverse country, you will find so many people who speaks different culture, who follows different custom, who speaks different language, okay, who follows different traditions, isn't it? In each and every state, within a state also you will find people speaking 3 to 4 languages, isn't it? Within the region also you will find people of diverse nature. So in this chapter, yet this diversity, yet there is a principle of diversity, isn't it, in our country, but there is always unity. We are always one and we are always united and we become many in the one. So here this line, this Aurobindo ji is also trying to say that this principle of unity in diversity has been a very normal to India. Why? We have always been celebrating this unity in diversity, and this also fulfilled the fundamental course of being and its very nature, okay, and that many in one. And these, because of these celebration and unity in diversity, this will surely make the foundation for what? Swava and Swadharma, means this is the one which is going to make foundation to be to do good. Swava means nature, isn't it? And Swadharma means to do our duty, isn't it? So this is the core foundation for fulfilling our duty as well as being good to other. Being, our nature should be good, isn't it? If you wanted to be good to other, we should be good from within. So this unity in diversity, this fulfills, okay, this fulfills the fundamental course of a living being or of a being, to make their nature good and to be dutiful in each and every situation. So that is why, yet there is unity in diversity, we always celebrate this diversity in our country. So here in this chapter we are going to learn about this different diversity we have in our country. So this is a very interesting chapter. Okay, so यहाँ पे ये देखो दूसरी लाइन है जो कि लिखी हुई है श्री औरोबिंदो जी ने। ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, देखो जो चैप्टर का नाम है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स देखो एकता है विविधता में। हम जैसे हमारे देश में बहुत डाइवर्स है कि नहीं, बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे टाइप के ड्रेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग हैं, है कि नहीं, लेकिन
फिर भी ये सब एकता बना के एक साथ ही रहते, सेलिब्रेट कर, उस एकता को सेलिब्रेट करते। देखो आपकी कम्युनिटी में भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अलग रीजन से आए हैं, अलग भाषा बोलते हो, अलग टाइप के वो ड्रेस डालते हैं, अलग टाइप के वो खाना खाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एक नेबर हो सकते हैं जो कि मुस्लिम है, दूसरे नेबर हो सकते हैं जो कि क्रिश्चियन है, तीसरे नेबर हो सकते हैं जो कि जैन होंगे, चौथे नेबर हो सकते हैं जो कि पारसी होंगे। वो सब अलग अलग ट्रेडिशन को फॉर्म करते हैं, लेकिन एक ही कम्युनिटी में रह के वो क्या दिखा रहे, यूनिटी दिखा रहे। तो ये यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे, जो ये यूनिटी है जो कि इंडिया में काफ़ी नॉर्मल है, जो कि हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, हमें कोई इतना असर नहीं पड़ता है कि नहीं। तो यही एक चीज़ है जो फुलफ़िल करेगी, ठीक है, यही एक चीज़ है जो फुलफ़िल करेगी हमारी फंडामेंटल कोर्स को। जैसे हम अपने आप को अच्छे बनाते हैं, जैसे स्वभाव और स्वधर्म को ये फुलफ़िल करती, फाउंडेशन ऑफ स्वभाव और स्वधर्म, मतलब जो हमारा धर्म है, जो हमारा नेचर है, इसको ये फुलफ़िल करती है। ये हमें टॉलरेंस बनाती है, ये हमें लोगों के प्रति भेदभाव वगैरह की ये जो भावना है, इसको ये क्या करती है, नकारती है कि नहीं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर में ये देखो बहुत ही ज़्यादा और अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, इंडिया के बारे में, भारत के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ताकि हम देखेंगे कि कितना डाइवर्स है। देखो इंडिया की आप देखो लैंडस्केप को ही देख लो, जो कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ी थी। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, एक स्टेट में जैसे हिमालयन साइड में देखो, हिमालयन वाले साइड में क्या है, वहाँ पे सारे माउंटेनस एरिया, उससे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो फिर वहाँ पे प्लेन एरिया है, फिर थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो फिर वहाँ पे क्या है, प्लेट्यू एरिया है। ऐसे अलग अलग लैंडस्केप है, अलग अलग लैंडस्केप के साथ जो अलग अलग जोग्राफिकल फीचर के साथ और क्या है, अलग अलग इनके कल्चर है, अलग अलग इनके ट्रेडिशंस है, अलग अलग इनकी भाषाएँ हैं, अलग अलग इनके वेशभूषाएँ हैं। तो उस बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में जानेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। देखो तो हम वो कौन सी 3 बड़ी क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो। तो इंडियन के हिसाब से, अपने हमारे देश भारत के हिसाब से यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग। तो ये डाइवर्सिटी में से ऐसी कौन सी डाइवर्सिटी है जो कि बहुत ही एक अलग से वो चमक के आती है, ठीक है, जो स्ट्राइक करती है। और तीसरी है, हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी। हम यूनिटी कैसे बनाते हैं, विभिन्नता बहुत सारी हमारे में, ठीक है, हमारे देश में डाइवर्सिटी काफ़ी है, लेकिन इस डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमने कैसे एक दूसरे को यूनाइट करके रखा है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डिवाइड करने की कोशिश की। क्या यूज़ किया इन्होंने, यूनिट, डिवाइड एंड रूल, रिलीजन को, है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के लोग हमारे देश में, बहुत सारे रिलीजन जो फॉलो करते वो ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की हिंदू और मुस्लिम के बीच में। लेकिन आखिर में क्या हुआ, स्टार्टिंग में वो लोग सक्सेसफुल रहे, लेकिन आखिर में क्या हुआ, जीत किसकी हुई, यूनिटी की हुई, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे के साथ यूनाइट हो गए थे, एक हो गए थे। जब एक हो गए तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को भी हरा दिया, और आज हमारा देश क्या है, आज़ाद है कि नहीं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो हम पहले हमारी जो रिच डाइवर्सिटी है उसके बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। A rich diversity. If you travel through India by train, you will notice not only changing landscape but also many different types of dresses and food. You will hear different language, familiar and unfamiliar, and see different scripts on the way. Even within your own region, you will often come across people from other parts of India with different customs and tradition. This is India's rich diversity, and it is usually the first thing that strikes visitor to our country. See, if you travel your country, India, okay, if for example, if you take a train from Delhi, okay, let us just say from Delhi to Kerala, okay, or or Tamil Nadu, all right, then on that way you will find different landscape which has been changing. In some place you will find mountains, in some place you will find plateaus, in some place you will find again plains. And with the changing landscape you will also find different types of dresses being worn, okay, and different types of foods being eaten by the people, isn't it? We have different types of food, we have different types of dresses according to a region, according to the state, isn't it? So you will notice everything, and also you will hear different type of language. Some of the language will be familiar to you and some of them will be unfamiliar to you. And also you will see different type of script. You will be, in some place you will be seeing a Bengali script, isn't it? In some place you will be seeing written in Hindi, in another place you will be seeing again written in Sanskrit also, and another place you will be seeing written in English also. And again you go to the southern part, you will be seeing the script which has been all written in the Tamil script, isn't it, or Kannada script.
So you will find different script as well on the way. And even within your own region also, you will often come across people from different parts of India. They have been come and they have been settled there. For example, Delhi, you will find in Delhi from all the parts of the country of the India, isn't it? They have came and they have settled over there in search of what? In search of job, isn't it? So they are coming and they are settling there. So you will find different types of people also, isn't it? So what is this? And they are again following different customs and tradition within the very state also, isn't it? And this is the India's rich diversity, and this is the very thing which attracts foreigners also, isn't it? This attracts the other visitors to our country. When they visit country, they see so much of diversity in our country. So this attracts them. Okay, these features of our country, that this is the first thing that strikes on the visitors, okay, who are visiting our country. सो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, जैसे कि आप ट्रैवल करते हो ट्रेन से, अगर आपने ट्रैवल कर लिया, जैसे स्टार्टिंग मान लो कि आपने दिल्ली से स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, दिल्ली से अगर आप तमिल तक जाते हैं या फिर तमिलनाडु तक जाते हैं, फिर केरला तक जाते हैं, फिर कन्याकुमारी तक अगर जाते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको अलग अलग लैंडस्केप देखने को मिलेगा। कहीं पे पहाड़ी इलाका होगा, कहीं पे आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, कहीं पे प्लेन्स, बिल्कुल प्लेन आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ के और उसके साथ साथ आपको क्या दिखेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, अलग अलग टाइप, देखो अलग अलग ड्रेसेस भी पहनते हैं हम, अलग अलग ट्रेडिशंस के हिसाब से अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, अलग अलग फूड होते हैं, वेराइटीज़ ऑफ फूड होते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ फूड होता है। और उसके साथ साथ अलग अलग भाषाएं हम सुनेंगे, जिनमें से कुछ आपने सुनी होगी या और जिनमें से कुछ आपने नहीं सुनी होगी, जब अनफेमिलियर होगे। और उसके साथ साथ आपको डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलेंगे। कहीं पे आपको बंगाली स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, कहीं पे हिंदी देखने को मिलेगा, कहीं पे तमिल देखने को मिलेगा। ऐसे करके अलग अलग भाषा, अलग अलग स्क्रिप्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और आपके खुद ही के रीजन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाकी इंडिया के जो पार्ट्स है उसमें से आके वहाँ पे सेटल हो रखे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया दिल्ली का। दिल्ली में आपको जो सारे इंडिया के जो लोग हैं, ओके, सारे डिफरेंट पार्ट्स से वहाँ पे आके सेटल हुए। आपको वहाँ पे सारे तरह के आपको लोग मिलेंगे। और वो क्या है? वो सारे डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं और डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। और यही है इंडिया का एक रिच डाइवर्सिटी, जिसके लिए हम लोग बहुत प्राउड भी फील करते हैं। और यही एक चीज़ है जो कि सबसे पहले भाती है किसको? जो फॉरेनर्स होते हैं हमारे कंट्रीज़ में, जो घूमने आते हैं, वो इसी सब को देख के वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब देखते हैं कि अच्छा इतना विभिन्नता है, इतना डाइवर्सिटी है। क्योंकि उनके कंट्री में तो एक जैसा ही खाना होता है ज़्यादातर, एक कंट्री में एक जैसा ही पहनावा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खाने हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स रहते हैं, अलग अलग भाषाएं रहती है, अलग अलग कस्टम्स रहते हैं, ट्रेडिशंस रहते हैं। तो यही चीज़ उनको भाती है और वही ये चीज़ देखने के लिए घूमने आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक डाटा है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको आप याद भी कर सकते हो, आप समझ सकते हो। पहले समझना। विथ ओवर 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट, देखो हमारा पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, और 1.4 बिलियन से करोड़ों में है, 140 करोड़ है कि नहीं। अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 18% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसमें से क्या है? 18% जो है इंडिया के अंदर से ही है। और इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी बन गई है। पहले चाइना थी, अब इंडिया ने इसको सरपास कर दिया। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? इंडिया है, जो हमारा भारत है, ठीक है। सो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो डाइवर्सिटी तो रहेगी ही। तो सच डाइवर्सिटी इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। तो ये सरप्राइज होने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रकार के लोग, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आपको विभिन्नताएं तो इसमें दिखेगी ही। तो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, देखते। इन द लेट 20th सेंचुरी द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, जो कि साइंस ऑफ, जो पढ़ते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके, ऑफ सर्वे of India, a national organization conducted a massive survey called the People of India Project of 4,635 communities across all the states of the country. It counted 325 languages using 25 scripts. It also observed that many Indians may be called migrants, in the sense people not living near their birthplace or with their original community. देखो यहाँ पे
पहला तो हमें एक डेटा मिल गया कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन है और करीब करीब 18% जो दुनिया का पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, वो इंडिया में, हमारे भारत में। और ये कोई सरप्राइज़ होने वाली बात भी नहीं है कि इसीलिए डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो 20वीं सदी के आसपास एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे एक हुआ था इंडिया में, ठीक है, जिसका नाम से पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से हुआ था। इस पे इन्होंने क्या देखा, इस सर्वे में इन्होंने क्या, इसकी रिपोर्ट क्या थी कि 4,635 कम्युनिटीज़ है इंडिया में, इंडिया के अंदर ही, ठीक है, अक्रॉस ऑल स्टेट्स इतने सारे कम्युनिटीज़ रहते हैं। ये 20वीं सदी की बात है, ठीक है, अभी तक और ज़्यादा हो गई होंगी। और उसके बाद इन्होंने क्या काउंट किया, 325 लैंग्वेज काउंट किया। ये सिर्फ लैंग्वेज की बात कर, लेकिन डायलेक्ट्स इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें इन्होंने और क्या चीज़ देखा, 25 स्क्रिप्ट्स पाए इन सारे ऑल ओवर इंडिया। और इन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया, क्या किया, जो कि बहुत सारे भारतीय है जो कि वो माइग्रेंट्स भी है। माइग्रेंट्स क्यों है, क्योंकि वो अपने स्टेट को, अपने रीजन को, अपने कम्युनिटी को जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उसको छोड़ के वो दूसरे रीजन में बहुत सारे लोग जाके सेटल हुए, ठीक है, दूसरे रीजन में, भारत के ही। तो इसलिए इनको माइग्रेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने ही ओरिजिनल कम्युनिटी में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, क्योंकि इन सर्च ऑफ जॉब, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिल्ली में बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके सेटल हुए, तो वो एक तरह से क्या हो गए, माइग्रेंट्स ही हो गए वहाँ पे। वो क्योंकि अपनी ओरिजिनल लोकल कम्युनिटी से तो नहीं आए, उनके बर्थ प्लेस तो वो दिल्ली नहीं है, वो किसी और जगह से, लेकिन आके सेटल कहाँ पे हुए, वो दिल्ली में हो गए। तो इसी तरीके से उनको माइग्रेंट्स बोला जाता है। ये एक सर्वे में भी पाया गया, ठीक है। So here what happens, see, a survey was been done, okay, in the 20th century. So the name of the survey was People of India Project, and there they have founded that 4,635 communities are there across all the state, and they also counted 325 languages are there. See, this is language. We have dialects also, isn't it? So many dialects are there, and according to your constitution there are 22 official languages, isn't it? 22 आपके 12 ऐसे official language है जो कि संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज कितने हैं, देखो 325, और ये 20वीं सदी की बात है। अब तक तो शायद और ज़्यादा भी हो गया होगा, हमें क्या पता। तो उसके बाद उसके साथ साथ क्या, और एंड यूजिंग अमंग दैट विद 325 लैंग्वेज, they also found that there are 25 script which has been used, okay, and it has been observed that many of the Indians, they are called migrants. Why they are migrants? Because they used to settle in other region, isn't it, in search of job or some other reason they used to settle in some other state. They are not living near the birthplace or with their original community. They are, some of them will be getting married and will be going into another region, isn't it, and some of them would be in the air force or in the army. And what happened in the air force or the army, they will be posted in every region for within 3 to 4 years, isn't it, every 5 years or every 3 years they will be posted to new region. And again, they are, even if they are posted with that new region, what will happen, they are going to follow their own customs and tradition. They are also going to learn new traditions as well, isn't it, and they are more open with the diversity. They know much more, they are much well known about the diversity of different states. Why? Because they have been posted in different area, in different places, in different kinds of people, so they are much more diverse, okay, they are much more familiar with, they are much more open with the diversity which is in our country, okay. So officially there are 22 official language, okay, which has been written in the constitution. But see, apart unofficial language are so many there, isn't it. So 325 languages are there, and including so many dialects, isn't it. So and there are 25 scripts. आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो कि आपको ये अपने क्लास में ही करना है, देखिए अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। उनके बर्थ प्लेस को आपको एटलीस्ट 5 जने के आपके बर्थ प्लेस को आपको पता करना है, और उनके पेरेंट्स के बर्थ प्लेस को आपको पता करना है। दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स मदर टंग वो कौन क्या भाषा वो बोलते हैं, और मदर टंग के अलावा और कौन सी भाषा है जो बोलती वो बोलते। देखो इंडिया पे एक और चीज़ है, ज़्यादातर जो इंडियंस होते हैं वो उनको 2 से लेकर 3 तक वो लैंग्वेज बोल सकते हैं मिनिमम में। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि 4 से 5 तक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, हिंदी सबको ही, ज़्यादातर सबको ही आता है, और इंग्लिश हर कोई बोल लेता है, समझ लेता है, तो 2 लैंग्वेज हो गई। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन वो उनकी एक मदर लैंग्वेज होती है, एक मदर टंग होती है, जो अपने घर में बात करते हैं, जो उनका एक डायलेक्ट होता है जिससे वो घर में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो 3 लैंग्वेज तो ऐसे ही ज़्यादातर लोगों को आती है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जो हमारा हिंदी है, ये हिंदी जो भाषा है ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, ये आप समझ लो, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं, इट इज़ हिंदी इज़ नॉट अ
national language. It is only an official language. Okay, official language. All right, it is not a national language. It is only an official language, because in India you will find regions who speaks Hindi more. Okay, the states who speaks Hindi, they are more in number. So that is why Hindi is an official language. It is not a national language. All right. So you can do this activity, okay, and you can comment also in the comment section, okay, by you can name the write down the name of your friends, and you can write down their their birthplace, and also you can write it down how many language they can speak apart from their mother language, and what is their mother language, okay, mother tongue. So while diversity is indeed beautiful, making sense of it is not so easy. Over a century ago, the British historian Vincent Smith wondered how, in the face of such bewildering diversity, can a history of India be written. The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity. See, despite there is diversity in our country, it is very beautiful, and it used to be very colorful, isn't it? Diversity means colorful, various color, you will find so many variants, so many varieties are there, isn't it? Not only in foods, you will find varieties of dresses, you will find varieties of customs, you will find varieties of language, isn't it? Varieties of thoughts, varieties of peoples, isn't it? With a different feature, they have different features. See, a person from the northeastern region have a mongoloid feature, a person from the northern part of the India again have a different feature, Aryan feature, isn't it? Again, in the person from the South Indian, they have a different feature. So you will find variety, but it is not so easy. So here one of the British historian, we are naming Vincent Smith, he wondered, yes, there are so much of diversity, how is the history of India going to be written? He was confused. So here the answer of this confusion was that was in fact found that India offers unity in diversity. So there were so many varieties of people, so many people, but yet they were all one, they were all unite, isn't it? So his query, his confusion was solved by what? Unity in diversity. Despite there are so many difference, they are one in many, isn't it? सो यहाँ पे इस लाइन पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ज़्यादा की देखो डाइवर्सिटी है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत कलरफुल भी लगता है, लेकिन ये जो एक ब्रिटिशर्स थे, एक हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे विंसेंट स्मिथ वंडर्ड के नाम से, ठीक है, सॉरी विंसेंट स्मिथ के नाम से, वो ऐसे सोच रहे थे, वो वंडर्ड कर रहे थे कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना सच बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया के हिस्ट्री को हम कैसे लिखेंगे? लेकिन उनका आंसर कैसे उनको मिला? उनका आंसर मिला देखिए, जहाँ यहाँ इंडिया पे, भारत पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे कल्चर्स के लोग हमको मिलेंगे, बहुत सारे प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे रिलीजन्स जो फॉलो करते हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी इन सब में एकता है, इन सब में प्यार है आपस में, तो यूनाइट इनको करती है। तो डाइवर्सिटी भी है लेकिन वो यूनाइट इनको करती है, तो वन इन मेनी इनको ये आंसर मिल गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑलराइट, सो व्हाट इज मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी? तो इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है उसको हम अब जानते हैं, ठीक है। हाउ सेल वी परसीव एंड एक्सप्रेस दिस यूनिटी और द मेनी इन वन? To answer this question, we will explore a few dimension of Indian life. तो एक जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में आपको बोले जा रही है शुरुआत से, और इनके आंसर भी उनको क्या मिला? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो एक्चुअल में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है क्या, तो इसको हम समझते हैं। कैसे समझेंगे? एक जैसे हमारे इंडियन के खाना को लेके हम खाना को एक्सप्लोर करेंगे, पहनावा को एक्सप्लोर करेंगे, टेक्सटाइल्स वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे, जगह को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हमें क्या पता लग जाएगा? डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी यूनिटी है, लेकिन फिर भी वन है। ये जो मैनी इन वन कैसे है, मैनी है लेकिन ये वन कैसे बन रही है, इस चीज़ को हम यहाँ पे अब समझेंगे, ठीक है। सी हियर, so we are going to understand actually what is unity in diversity. Here his answered, his confusion to the answer was unity in diversity, but I have also been talking about unity and diversity, but what is actually this unity of diversity, how they are many in one? So in order to get the answer, we are going to explore few dimensions of Indian life, like we are going to explore their food habit, isn't it, their cultural habit, their clothing, their textiles, okay, and we are going to understand this term unity in diversity. All right, so first here let us explore food, okay, food for all. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे खाना को, food for all मतलब
डाइवर्सिटी है लेकिन ऐसे कुछ फूड्स है जो कि हर जगह वो खाते, सारे देश में सब लोग उसको खाते। हम बोल रहे हैं ना कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के फूड है। हाँ, ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो एक रीजन में मिलती है और दूसरे रीजन में नहीं मिलती, लेकिन फिर भी एक ऐसी कुछ फूड्स है, जो सीरियल्स है, जो दालें हैं, ठीक है, वो सब लोग खाते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से, लेकिन वो है तो वही चीज़। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। वो तो है तो एक चीज़, लेकिन वही है कि डिफरेंस क्या, यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम लोग खाते हैं उसको। some of you will have eaten foods from different regions of India। तो हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो अलग रीजन्स के हमने फूड टेस्ट कर रखे हैं कि नहीं, अलग अलग, जैसे एक ही रीजन में मिल जाता है आपको, अगर होटल में जाओगे तो आपको चाइनीज़ फूड भी मिल जाएगा, आपको साउथ इंडियन भी मिल जाएगा, आपको नॉर्थ इंडियन भी मिल जाएगा, आपको नॉर्थ ईस्टर्न भी मिल जाएंगे। जो सारे आपके फूड्स आपको एक ही होटल में, आप अगर जाओगे किसी भी होटल में खाना खाने की तो वहीं पर आपको मिल जाते हैं। तो आपने ऑब्वियसली टेस्ट तो कर रखा होगा डिफरेंट रीजन्स ऑफ फूड, उसका टेस्ट भी अंदर होता है, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस उनका क्या होता है, बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं, ठीक है। तो उसी सेम इंग्रेडिएंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, वन, लेकिन बनाने का तरीका क्या है, बहुत सारे, तो इसलिए मेनी। ऑलराइट, तो देखते हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेस एंड प्रिपरेशन यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन देयर थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स। सो ऐसे जो डिफरेंट डिशेस होते हैं, प्रिपरेशन जो आप डिफरेंट तरीके से बनाते हो, ये हज़ारों तरीके के होंगे या लाखों तरीके के होंगे, लेकिन इंग्रेडिएंट्स एक ही है, ठीक है। Yet certain food grains are common to almost every part of the country. Cereals such as rice, barley and wheat, millets such as pearl millet, बाजरा, sorghum जो कि जोवर है, finger millet जो कि रागी है, and pulses such as various kinds of dals। देखो, वेरियस काइंड्स ऑफ दाल्स एंड, पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेती हूँ फिर हम आएंगे इस मैप में, ठीक है। दाल्स एंड ग्राम्स, all these are called staple grains because they are the basic food for the most Indian. Similarly, some common spices such as turmeric, cumin, cardamom and ginger are also used throughout the country. We could continue this list with some common vegetables, common oils, etc. देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आप बनाते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस होते हैं, लेकिन उनका इंग्रेडिएंट्स एक ही है, ठीक है। जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जो दालें हैं, कुछ सीरियल्स हैं, राइस है, हर जगह पाए जाते हैं और हर जगह ये खाते हैं कि नहीं। व्हीट है, बार्ली है, मिलेट्स है, यहाँ पे जैसे पर्ल मिलेट्स, यहाँ पे बाजरा का नाम इन्होंने दिया हुआ है, जोवर का नाम इन्होंने दिया हुआ है, फिंगर मिलेट्स रागी का नाम इन्होंने दिया हुआ है, और जो बहुत सारे दालें हैं, जो जैसे राजमा दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, ग्राम्स, ये सब कुछ हर जगह पे पाया जाता है, ठीक है। सी हियर, डिस्पाइट वी हैव अ वैरायटी ऑफ डिशेस and there are variety of thousands of taste, we can prepare it in thousands of ways, and in, if not thousand, in lakhs of ways are there, but they are preparing out of the same one product, isn't it, out of the same one thing. And here example, as an example, cereals, isn't it, there are certain food grains which are available and common to every part of the country. Cereals like rice, barley, wheat, isn't it, pearl millet, sorghum, ragi, finger millets, these various kinds of dals are there, isn't it, yellow dal, red dal, black dal, green dal, so many dals are there, isn't it. These are available in all parts of the country, isn't it. Here see, it has been given, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे राजमा इस टाइप का मिलता है, यहाँ पे भी राजमा मिलता है, वाइट लोबिया मिलता है, बासमती राइस यहाँ पे मिलता है, मूंग दाल यहाँ पे मिलता है, मसूर दाल, देखो दाल तो सारे दाल है, सीरियल्स यहाँ पे भी राइस है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के राइस मिल रहे हैं, लेकिन ये वैरायटी ऑफ राइस है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ अलग है, इनका स्वाद अलग है, राइस ही है लेकिन अलग अलग वेराइटीज़ के हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो चने हैं, है ना, ये देखो मिलेट्स है, मेज़ है, अरहर की दाल यहाँ पे है, जोवर है, मेज़ है, ग्राम में देखो पिजन पी, राइस, यहाँ पे आपको हर जगह ये सारे कॉमन मिलेंगे, हर जगह पे यहाँ पे मिलेगा। कोलम राइस केरला में, तमिल में पोन्नी राइस, देखो राइस ही है लेकिन नाम अलग अलग है, कोलम राइस, पोन्नी राइस, सोना मसूरी राइस, देखो ये भी राइस ही है। तो यहाँ देखो मिलेट्स है यहाँ पे, तो सारे वर्ड मतलब सारे पार्ट्स में आपको मिलेंगे। और ये सब क्या है, ये स्टेपल ग्रेन्स है, ऑल दीज आर स्टेपल ग्रेन्स। दैट मीन्स वाई स्टेपल ग्रेन्स, बिकॉज दीज आर द बेसिक फूड। ये एक बेसिक फूड है सब इंडियंस के लिए, हर इंडियंस में, सारी रीजन में, भारत में आप कहीं भी चले जाओ आपको ये चीज़ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, दाल, सीरियल्स, दालें, ये सारे कुछ आपको मिलेंगे ही। और ये क्यों, इसीलिए इसको स्टेपल ग्रेन्स बोला जाता है, ये क्योंकि बेसिक फूड में से जो कि हमारे घरों में रोज़ बनता ही बनता है। और अगर रोज़ नहीं बन रहा है तो हर एक दूसरे दिन ये चीज़ आपको बना हुआ ही मिलेगा। जैसे आपके घर में बनता है ना
राजमा चावल बन जाता है हफ्ते में 1 बार या 2 बार। दाल तो ऑलमोस्ट किसी के घर में तो रोज़ ही बनता है। राइस भी किसी के घर में रोज़ बनता है। तो रोज़ जो क्यों, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टेपल ग्रेन्स, ठीक है, बेसिक जो हम रोज़ खाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्पाइसेस है, टर्मरिक, क्यूमिन जो हल्दी, जीरा, क्यूमिन मतलब जीरा, और कार्डेमम्स मतलब इलायची, ये अदरक, जिंजर, दीज आर यूज थ्रू आउट द कंट्री। ये सारी कंट्री में यूज़ होता है, सब लोग इसको यूज़ करते हैं। दाल बनाने में, कुछ सब्जी बनाने में, कुछ भी बनाने में ये लोग यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है, ये लोग ये बनाते हैं सारे एक ही इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाते हैं, लेकिन टेस्ट अलग होता है। तो एक ही चीज़ से बना रहे हैं वन, और लेकिन टेस्ट अलग है, वैरायटी अलग अलग निकाल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन इन मैनी। आई होप आपको समझ आ गया। वन इन मैनी का मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक है लेकिन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये फूड को लेके है, ठीक है, फूड को लेके, विचार को लेके भी हम बात करेंगे, ठीक है। सी हियर व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इज दैट throughout the country you will find similar type of cereals, isn't it? So, and these cereals are known as staple grains. Why? Because these are being used, these are our basic food which you used to eat daily in our day-to-day life. Rajma, dal, all this we used to eat, rice, isn't it, every day you used to eat. So besides these staple grains, okay, there are some common spices also there, that is the turmeric, cumin, cardamom and ginger. These are used throughout the country by everyone, by every household. These are being used, isn't it? So this, using that same ingredients, they are making different varieties of taste, they are producing different varieties of food, isn't it? So that variety is not a diversity, but using one ingredient, that is one in many, isn't it? Unity in diversity, one in many. I hope you have understood. सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम कॉमन वेजिटेबल, सब्जियाँ भी जो हर जगह मिलती है। गोभी आपको हर जगह मिलेगी, आलू आपको हर जगह मिलेगी, प्याज आपको सब जगह मिलती है, टमाटर आपको हर सब जगह मिलती है, हर जगह मिलती है कि नहीं? तो ऐसे कॉमन वेजिटेबल्स भी है, तो जो सारे मतलब दुनिया में ही मिलते हैं कि नहीं, सारे दुनिया में लेके हमें हमारे भारत में भी हर जगह पे मिलती है। जैसे अदरक भी हर जगह मिलती है, जैसे अदरक तो चलो स्पाइस के अंदर आ गया। तो ऐसे जो भिंडी है, जो बीन्स है, जो ऐसे हर रीजन में ये मिलता है, ठीक है। और ऐसे कुछ तेल है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल में एग्जांपल लेना चाहती हूँ यहाँ पे, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइन ऑयल, ये आपको हर जगह मिलेगी। लेकिन आप अगर साउथ में आपको क्या मिलेगा, ज़्यादातर कोकोनट ऑयल मिलेगा, और नॉर्थ पे आपको क्या मिलेगा, ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल मिलेगा, है कि नहीं? तो ऐसे लेकिन मिलता है, कॉमन है, हर जगह पे है, ठीक है। सो देखो जो मैंने आपको बताया ना, सो वी सी हाउ द सेम इंग्रेडिएंट्स, देखो सेम इंग्रेडिएंट्स, दालें वही है, जो स्पाइसेस वही है, सब कुछ है, यूनिटी हो गया, एक ही है, कैन बी यूज इन अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, डाइवर्सिटी। और लेकिन फूड्स क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, टू प्रिपेयर एन एंडलेस वेराइटी ऑफ डिशेस। वही एक चीज़ को यूज़ करके अलग अलग तरीके का बनता है कि नहीं? तो जैसे कि राइस को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, जैसे कि साउथ में राइस को अच्छे से पीस के, उसको अच्छे से बैटर बना के, उसका फिर डोसा बन जाता है। और वही राइस हम फिर नॉर्थ इंडिया में कैसे, ऐसा प्लेन राइस खाते हैं, है कि नहीं? तो एक ही चीज़ को, एक ही इंग्रेडिएंट्स को इन्होंने क्या किया, अलग अलग वैरायटी बना दिया, अलग अलग डिशेस बना दिया, अलग अलग बना दिया, तो उससे क्या हुआ, डाइवर्स हो गया वो। तो एक ही में बहुत सारा बना दिया, तो मैनी इन वन। तो आई होप आपको समझ आ गया है अब तो, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे एक और क्लास एक्टिविटी है जो कि आपको करनी है। एज अ क्लास एक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ओके, आपको इंग्रेडिएंट्स बनाए जो कि हमने अभी पढ़ा ना, ग्रेन, स्पाइसेस, जो भी हमने अभी पढ़ा था, दैट आर यूज्ड इन योर होम। आपके घर में क्या क्या यूज़ होता है, आप उसका एक लिस्ट बनाइए और आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखते और देखिए, जो मेरा वीडियो बहुत सारे रीज़न से देख रहे होंगे लोग, तो यहाँ पे वेराइटी आपको और पता लग जाएगा, आपके घर में क्या क्या बनता है, क्या क्या ग्रेन्स यूज़ होता है, स्पाइस कौन सा यूज़ होता है, आप लिखिएगा। आप देखना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होंगे जो कि सेम होगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स सेम ही होता है, ठीक है। और उसके बाद और एक दूसरा एक्टिविटी है, टेक एनी वन वेजिटेबल एंड थिंक ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेस यू कैन प्रिपेयर इट। देखो एक वेजिटेबल का, फॉर एग्जांपल आलू का ही आप ले लो, या फिर गोभी का आप ले लो, गोभी की आप सब्जी बना सकते हो, गोभी की आप मंचूरियन बना सकते हो, है कि नहीं? गोभी को पीस के फिर हम क्या करते हैं, पराठा बनाते हैं। तो ऐसे करके कोई भी एक सब्जी का नाम लीजिए, और उसके उस सब्जी से कितने वेराइटीज़ ऑफ डिशेस बन सकते हैं वो आप लिखिए। अपने मम्मी से पूछिएगा, अपने पापा से पूछिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, उतना मुझे मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में। तो मुझे अभी काफ़ी आपका सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि अभी ये मेरा जो चैनल है नया चैनल है, और मैं कोशिश करूँगी बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा, तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी बताना जिनको पता नहीं है मेरे चैनल के बारे में।
तो ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के बारे में, ठीक है, कपड़े के बारे में। कपड़े में कितना वैरायटी है, लेकिन एक ही कपड़ा का यहाँ पे यूज़, एक ही कपड़े के हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन उसके वैरायटीज़ कितने सारे हैं उस चीज़ को हम लेके यहाँ पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करें, फूड को लेके तो हमने समझ लिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे है, मैनी वन इन मैनी कैसे, तो कपड़े को लेके वन इन मैनी कैसे है वो चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। एवरी रीजन इन कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ डेवलप इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेस। देखो आप देखोगे इंडिया पे हर रीजन में उनके एक अलग तरीका होता है कि उनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, अलग होता है, उनके कलर्स अलग होते हैं, उनके जो कपड़ा में जो वैरायटी जो टेक्सटाइल यूज़ होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक कॉमन चीज़ को हम लेंगे, ठीक है, जो एक ही है, हर कोई उसको पहनता है। येट वी नोटिस ए कॉमनलिटी इन सम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस। तो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस है उसमें एक कॉमन चीज़ है, बस उसका पहनने का तरीका अलग है, उसका वैरायटी अलग है, उसका कलर अलग है, लेकिन है तो वो एक ही चीज़, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल यूज, तो उसका मटेरियल अलग होगा, किसी में सिल्क यूज़ होता है, कहीं पे जॉर्जेट यूज़ होता है कि नहीं, कहीं पे अलग फैब्रिक्स यूज़ होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे देखते कौन सा है एग्जाम्पल आपके मन में भी आ रहा होगा, साड़ी, है कि नहीं। एन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज द प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ कॉल दिस साड़ी। देखो साड़ी का क्या है, लेंथ एक ही होता है, हर कोई पहनता है, इंडिया में सारे लोग पहनते हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेस है। लेकिन ये क्या करते हैं, अलग तरीके से पहनते। देखिए गुजरात में वो अलग तरीके से साड़ी पहनेंगे, साउथ इंडिया में वो अलग तरीके का साड़ी पहनते हैं, और नॉर्थ इंडिया में फिर वो अलग तरीके का साड़ी पहनते। साड़ी तो साड़ी ही है ना, एक ही है ना, लेकिन एक साड़ी को उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके से पहनते, अलग अलग मटेरियल्स का वो बनता है, तो डाइवर्सिटी हो गया, मैनी हो गया। तो यहाँ पे भी आपको समझ आ गया होगा कैसे वन इन मैनी हो गया। A type of clothing worn in the most part of India made from the different fabrics। देखो ये वही है ना, साड़ी जो इंडिया में पहना जाता है, डिफरेंट पार्ट्स में पहना जाता है, लेकिन क्या है, अलग अलग फैब्रिक्स का वो बना होता है। See here on the clothing section, okay, how we are going to understand one in diversity is that, or many in one, or one in many, okay, one in many, okay, unity in diversity, that every region in India they have their own style of clothing and dress, isn't it? So here, but we have common, okay, we have something in common, that one common. So here one example is that of sari, okay, that is a plain length of cloth, okay. This is a type of cloth worn in every parts of the India, and these are made from different fabrics. But the thing is that the sari is same, isn't it? The length of the sari is same, but the way how we are going to drape it, like for example in Gujarat they are going to drape it in a different way, isn't it? And like and in the northeastern region again they are going to drape this in a different way. In Assam again you will find, isn't it, mekhla, its name is mekhla, isn't it? So they are draping it in a different way. And again in South Indian they will draping sari in a different way, isn't it? But what is that, the material, the basic thing is that is sari, isn't it? So out of that sari they have a different variety of draping style, different varieties of material being used, isn't it? So this make one in many, okay, just like in food, one in many here also. And these saris, okay, these are mostly made of cotton or silk, but nowadays you can find synthetic fabric as well, okay, of a georgette and all. And Banarasi, Kanjivaram, see Banarasi is famous in the North Indian region, Banaras region, and this Kanjivaram is famous in where, South region, isn't it? And Paithani, Patan Patola, Muga, these are famous in northeastern region, और Mysore are some of the famous type of silk साड़ी। तो यहाँ पे देखो साड़ी कौन सी, कॉटन की बनी होती है या सिल्क की बनी होती है, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स भी आ गए, जैसे कि जॉर्जेट हो गया, है ना। तो कुछ फेमस साड़ी का यहाँ पे मटेरियल्स का नाम दिया हुआ है, जैसे कि बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, कांजीवरम साड़ी जो कि साउथ में काफ़ी फेमस है, पैठानी साड़ी, पठन पटोला, मुगा साड़ी जो कि आसाम वगैरह साइड में काफ़ी फेमस है, और मैसूर में, और मुगा और मैसूर इसको बोलते हैं। ये सारे फेमस सिल्क है जो साड़ी के, ठीक है, सिल्क साड़ी के वेराइटीज़ है, ठीक है ये। एंड देयर आर मेनी मोर काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ीज़ के भी बहुत सारे वेराइटीज़ है। ऑल टुगेदर दिस अनस्टिच पीस ऑफ क्लॉथ कम्स इन हंड्रेड्स ऑफ वेराइटी। तो ये अनस्टिच पीच है, देखिए, क्योंकि इसका कोई हम डिज़ाइन नहीं बनाते ना, कोई ऐसे नहीं है, तो ये प्लेन होता है, सिंपल होता है, लंबा होता है, लेकिन क्या है यहाँ पे मटेरियल अलग होगा, डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होगा वहाँ पे, और पहनने का तरीका होगा अलग, लेकिन है तो क्या, साड़ी ही, एक ही चीज़ है। तो एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ निकल रही है इसमें, तो वन इन मैनी, ओके। सो सी हियर,
See, we have talked about different types of materials of sari, okay, like there are so many materials, example of silk, Banarasi, Kanjivaram, okay, and many of the materials, many famous saris are being made out of cotton saris also, because reasons where they used to be very hot, they will be prefer wearing cotton, isn't it, because it is a lightweight, and also it enhances our it allows air to pass, isn't it, air to pass freely within our body as well. So cotton is being used. So this unstitched piece of sari comes in hundreds of varieties. Although this unstitched piece, this sari is one, isn't it, but it comes in hundreds of varieties, so this make it diverse. So one in many. So we'll come to this picture, okay, wait. They are produced by different methods. So these saris are being produced and being made by different purpose, okay, sorry, different methods, by methods of weaving. We'll example see here in given here, see here, आप देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के साड़ी मटेरियल्स दिख रहे हैं ना आपको, वीव करके जिसको बनाया हुआ है, एंड डिज़ाइन देखो अलग अलग डिज़ाइन से, ये इस डिज़ाइन से अलग है, ये इस डिज़ाइन से अलग है. Some designs are part of the cloth while others are printed after the cloth is woven. तो कुछ डिज़ाइंस ऐसे कि जो क्लोथ्स में जब वो विव किया है उनको वैसे ही वो बनते हैं, और कुछ उसमें प्रिंट भी लगाया जाता है ऊपर से. Finally, there are endless variation in the colors which are produced from many kinds of pigments. So colors वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, बहुत varieties of colors आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है. और जो कहा ये द साड़ी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, तो साड़ी की भी काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री है. हम उस जो पिक्चर को हम देखेंगे, द स्टोन रिलीफ, ओके, जो रिलीफ का मतलब जो थोड़ा सा बाहर की तरफ आया होता है ना, जैसे स्टोन में देखो यहाँ पे मीनिंग भी है, मीनिंग को भी देख लेते हैं एक बार. अ डिज़ाइन दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सरफेस, तो बाहर की तरफ निकल के आता है ना, ऑफ अ पैनल विच मे बी ऑफ अ स्टोन, वुड, सेरामिक और अनदर मटेरियल. ये स्टोन का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, सिरेमिक का भी हो सकता है, और कुछ और मटेरियल्स का भी हो सकता है, जैसे कि बाहर की तरफ जो आता है. अभी हम देखेंगे फिगर में. फ्रॉम वैशाली टुडे इन बिहार गोस बैक अ फ्यू सेंचुरीज BCE, तो बहुत पुराने टाइम में भी ये क्या है, साड़ी पहनते थे लोग. इस चीज़ को हमें, इस पैनल को देख के हमें पता लगता है. देखो ये थोड़ी सी बाहर आई हुई है ना, ये जो पैनल, ये जो स्कल्पचर बनी हुई है बाहर की तरफ है, तो इसलिए इसको रिलीफ बोला हुआ है, ठीक है, स्टोन रिलीफ, ये जो पत्थर का बना हुआ है. ऑफ अ वुमेन इन साड़ी फ्रॉम वैशाली टुडे इन बिहार, देखो ये वैशाली रीजन का है. देखो इसने भी क्या है, देखो ये ड्रैपिंग की तरीके से हमें पता लग जाता है क्या है, ये साड़ी है कि नहीं. ओके देखो, एक्सप्लेन हाउ द एग्जाम्पल ऑफ साड़ी रिफ्लेक्ट्स बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. जैसे कि मैंने आपको बोला ना, ये कैसे जैसे साड़ी को एग्जाम्पल लेके कैसे ये यूनिटी और डाइवर्सिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करती है. उसी एक कपड़े को, यूजिंग दैट सेम पीस ऑफ क्लोथ, दे आर प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ things, isn't it, variety of colors, variety of prints over there, and variety of way of draping it. So it represents that from one thing they have again produced varieties, isn't it. So that is how unity and diversity comes, isn't it. Sari reflects both unity as well as diversity. It's been worn by all the people throughout the country, isn't it, in all the parts of the India, but the way they draped it, it becomes different, isn't it. The material is different and the prints are different, the designs are different, but yet it is sari, that one thing, isn't it. So it reflects diversity. So you try to write in your own way, okay, in 100 to 150 words. I have already explained you. So let us see one more thing here, don't miss out. एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं. For a very long time India produced the finest cotton in the world, and Indian textiles were exported as far as Europe. One beautiful type of printed cotton called chintz became so popular in 17th century Europe that the sale of some European dress dropped sharply. Eventually, to protect their own product, England and France decided to ban the import of chintz from India. देखो बहुत टाइम पहले, ठीक है, बहुत टाइम तक इंडिया, देखिए इंडिया में बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ कॉटन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कॉटन्स में भी बहुत वेराइटीज़ होते हैं. तो ऐसा ही एक वेराइटी था, किस नाम से, चिन्स नाम से. तो इसको कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था, यूरोप तक इसको एक्सपोर्ट किया जाता था. और ये कॉटन मटेरियल इतनी अच्छी थी, इतनी पॉपुलर ये बन गई कि इतनी अच्छी थी, इसका सेल भी काफ़ी होने लगा, बहुत सारा ये इम्पोर्ट होने लगे. कहाँ पे, यूरोप में ये इंपोर्ट होने लग गया, इंडिया से एक्सपोर्ट होने लग गया और यूरोप में इंपोर्ट होने लग गया. तो इनकी सेल इतनी ज़्यादा हो गई कि इस चीज़ के कारण जो यूरोपियन के ड्रेस थे वो बिकना बंद हो गया, ठीक है, वो ड्रॉप डाउन, वो बिकना ही बंद हो गया. तो इन्होंने अपने जैसे अपने मार्केट को अलाइव रखने के लिए, अपने जो खुद प्रोड्यूस करते उस चीज़ को अलाइव करने के लिए, इनके ड्रेस को अलाइव रखने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया. ये जीन्स जो है इसको
लेना ही बंद कर दिया, इंपोर्ट करना ही बैन कर दिया। बोथ इंग्लैंड में और फ्रांस में दे डिसाइडेड, उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि हम इस चीज़ को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब इस चीज़ को हम लेंगे नहीं, हम खरीदेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका खुद का ड्रेस जो है, उनका खुद का जो ड्रेस मटेरियल है वो बिकना बंद हो गया, क्योंकि ये जो कॉटन जीन्स था ये काफ़ी अच्छा मटेरियल था, ठीक है, काफ़ी अच्छा वैरायटी ऑफ कॉटन था। सी हियर, सो since a very long time there was a very fine variety of cotton named as chins in India, and it was been exported to Europe, okay, in both in England and France. So England and France, they this material was so fine that people started buying it. People started preferring buying these chins instead of their European material, European dress. So because of that, what happened? The selling of their dress dropped down. So in order to bring alive their market, to make their dress again sell, what they have done, they decided to protest. Okay, they decided to, in order to protect their product, what they have decided, they decided to ban the import of what? Chins from India, so that their dress will be sold. Otherwise people started liking this material more, chins more, so they started buying it more. So in order to protect their own product, what they have done, they have banned this one. So from this what we came to know, यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि कितनी अच्छी वैरायटी ऑफ कॉटन जो इंडिया में ग्रो करती थी और वो एक्सपोर्ट होके भी ऐसा उन्होंने तहलका मचा दिया बाहर के मार्केट में, है कि नहीं? सो सच अ गुड वैरायटी ऑफ कॉटन वॉज बीन ग्रोन इन इंडिया दैट इट हैज़ whipped out their market over in foreigns, isn't it? So there are many ways of wearing sari, as they vary from one region to another or from one community to another. In fact, new ways of draping it are still being invented, but in the end it is a single dress, the sari, isn't it? देखो यहाँ पे ऊपर आपके क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर भी यही है, ठीक हो। देर आर मेनी वे, साड़ी को पहनने के लिए बहुत सारे वेराइटीज़ है और सारे रीजन्स में इसको अलग अलग वेराइटी, अलग अलग तरीके से ही पहनते हैं, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से पहनते हैं। नया तरीका और निकाल भी रहे हैं ड्रैप करने का, इसको कैसे ये और निकल रहा है कि नहीं? आजकल जैसे आप देखोगे मॉडर्न तरीका होता है ड्रैप करने का, है कि नहीं? तो लेकिन एंड में क्या है तो वही सिंगल एक ड्रेस, सेम ड्रेस से क्या निकाल रहे हैं? वेराइटी निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही वन इन मैनी, ठीक है, द साड़ी। सो इन द पास्ट सेंचुरी, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी हम देखेंगे, ठीक है। Several travelers to India marveled at its simplicity, economy, and the diverse way in which it is worn. In addition, women often put the sari to many uses beyond that of a dress. The sixth picture in figure 8.4 above illustrates such a few creative uses. See, दिस साड़ी, ओके, ये जो बहुत सारे जो लोग जैसे जो ट्रैवलर्स थे इंडिया पे, वो भी ये साड़ी की जो सिंप्लिसिटी, देखिए साड़ी हर किसी को पसंद आता है। जब फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में तो आप देखोगे वो साड़ी डाल के ऐसे घूम रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज़ उनको बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी सिंपल भी होता है, काफ़ी इकोनॉमिक भी रहता है, बहुत ही ऐसा महंगा भी नहीं पड़ता ये तो। और एक चीज़, वो डाइवर्स वेज को भी इसको देख के वो उसको पसंद करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, क्योंकि एक रीज़न में अलग तरीके से ड्रैप होता है, दूसरे रीज़न में अलग तरीके से ये ड्रैप होता है। तो इसलिए इसको क्या किया इन्होंने, ये इसको पसंद किया काफ़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे पहनने के अलावा वुमेंस ने साड़ी का कुछ यूज़ भी कर रखा है, ठीक है। पहनने के अलावा जैसे हम देख लेते हैं इस पिक्चर में ऊपर, देखो यहाँ पे क्या है, साड़ी को एक बच्चे को सुलाने के लिए यूज़ किया हुआ है चुन्नी की तरह, देखो ये पेड़ में बांध के, है कि नहीं। दूसरा यहाँ पे ये फिशिंग के लिए यूज़ कर रही है, इसका पिक्चर कंटिन्यूशन आपको नीचे मिलेगा। और यहाँ पे देखो ये ग्रेन्स रखने के लिए यूज़ कर रही है, यहाँ पे अपने आप को देखिए पिक्चर नीचे मिलेगा आपको, बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए मिलेगा। देखिए अपने आप को, जैसे ये फिशिंग वाला था ना, कंटिन्यूशन है, जैसे अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर रही है बारिश से। और ये क्या कर रही है, देखिए इसके साड़ी के पल्ले को यहाँ पे यूज़ कर रही है पानी लेने के लिए, तो ऐसे भी ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये लेडी क्या कर रही है, जैसे ये गाय चराने आई है, तो गाय चराते ये थक गई होगी, तो ये लेटना चाह रही थी, तो इन्होंने अपने साड़ी का पल्ला को क्या किया, बिछा लिया और उसी के ऊपर ये सो रही है, थोड़ा नैप ले रही है। तो ऐसे करके डिफरेंट यूज़ भी होते हैं साड़ी के, ठीक है। तो आप एक और एक्टिविटी यहाँ पे जो आपको करनी है, फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ द साड़ी मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स यू हैव सीन फॉर दी धोती। देखो धोती का आपको डिफरेंट स्टाइल्स जो आपको दिखाए, उसको आपको एक लिस्ट बनाना है। बोथ रिगार्ड एज द फैब्रिक एंड द यूजेस धोती कैन पुट इनटू, फैब्रिक्स जो अलग अलग बनते हैं धोती के, और इसको भी आपको लेके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। फेस्टिवल गैलोर्स को, जैसे कि एक ही टाइप के त्यौहार हम मनाते हैं सारे देश में, लेकिन उसका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे किस चीज़ की एग्जाम्पल दे रखिए, मकर संक्रांति के इस पे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। और हाँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन English, okay. First I'm going to explain in Hindi or either in English, and again I'm going to repeat the same paragraph in
Hindi or English. If I've explained in Hindi, I'll explain in English. Okay. So, festival galores. There is an immense variety of festival in India. You may have noticed that a few common ones are celebrated across India almost at the same time, though they have different names. We will just take one example, Makar Sankranti, which marks the beginning of the harvest season in many parts of India. Okay, many parts of India on or around 14 January. The maps show different names of similar festival across India about the same detail. Okay, shows the different names of similar festival across India about the same detail. See here, देखो यहाँ पे क्या है, हम फेस्टिवल के बारे में बात कर, हम त्योहारों के बारे में बात कर रहे थे। हर जगह पे भारत पे जैसे त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, दुर्गा पूजा हम, दशहरा हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें काफ़ी जगह पे उसका नाम दशहरा होता है, काफ़ी जगह पे उसका नाम दुर्गा पूजा रहता है कि नहीं। ऐसे ही करके हम बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। होली हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तरीका उसका अलग अलग रहता है। हर स्टेट में, हर रीजन में उसका सेलिब्रेट करने का एक तरीका अलग रहता है, ठीक है। लेकिन है तो वो एक ही फेस्टिवल हम बहुत तरीके से सेलिब्रेट करें। तो ऐसे यहाँ पे भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक झलक हमें देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है मकर संक्रांति के बारे में। ये मकर संक्रांति कब होती है? जब हार्वेस्टिंग सीजन होती है। स्पेशली ये कौन मनाता है? फार्मर्स लोग, सारे इंडिया, अक्रॉस टू इंडिया, ओके, वो लोग मनाते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मर्स मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं। ये हार्वेस्टिंग का सीजन रहता है, जब कटाई वगैरह हो जाती है, फसल की कटाई वगैरह ये करने लगते हैं, तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है मकर संक्रांति। तो आपने तो सुना ही होगा इसके बारे में। तो ये कब मनाई जाती है? जनवरी 14 को, लगभग जनवरी 13 या 14 के आसपास ही ये हम हर साल ये पड़ती है, ठीक है। तो इसके एक ही फेस्टिवल के कितने सारे नाम हैं। देखो, सारे इंडिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ठीक है। लेकिन इसी एक फेस्टिवल के जैसे मकर संक्रांति के नाम भी जैसे अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैप में दिया हुआ है। तो आप भी अपने मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपके रीजन में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर ये कश्मीर वाले रीजन में सिशूर शैनक्रत के नाम से है, पंजाब में लोहड़ी के नाम से है, ये असम में बिहू के नाम से है, जो कि बहुत फेमस माना जाता है कि नहीं। लेकिन है ये मकर संक्रांति के। नॉर्थ इंडिया में ये मकर संक्रांति बोलते हैं। और फिर देखो तमिल में ये इसको क्या बोलते हैं? पोंगल बोलते हैं। केरला में फिर क्या बोलते हैं? मकारा विलाक्कू बोलते हैं। ऐसे अलग अलग नाम है, लेकिन है ये एक ही फेस्टिवल, एक ही चीज़ को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग को सेलिब्रेट कर रही है कि नहीं। हार्वेस्टिंग सीजन को, बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, जब कटाई वगैरह स्टार्ट होने लगती है, उस सीजन को ये उस टाइम को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से। तो ऐसे ही ये हुआ ना, एक ही चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। तो डाइवर्सिटी ऐसे आ गया, ठीक है। डाइवर्स वो बन गया, मैनी बन गया, मैनी इन दी वन, ओके। So here we are talking about these festival galore, okay. So here in India, see, wide varieties of festivals are being celebrated, isn't it? There are so many festivals starting from throughout the year, okay. Throughout the year, every month you will find that okay, some festival is coming, and now it is like recently we have celebrated Janmashtami, isn't it? Again what is coming? Ganesh Chaturthi is coming. Again after that what will come? Durga Puja will come. Again Diwali, isn't it? Again these Christmas. So again Holi, again this Makar Sankranti. So there are n numbers of festivals, okay. There are so many festivals which are being celebrated in India, but what you may have noticed that there are some few common festivals also which are being celebrated all over India, okay, at the same time, but with a different name. They have a different name. So here they have given example of Makar Sankranti, okay. This marks the beginning of the harvesting season. So this has been celebrated all over the India, and this has been celebrated at mostly at around January 14 or 13, okay. So here in this map, this Makar Sankranti is been celebrated all over the India. So it has been see here in this map we can see it has been celebrated all over the India, but it has a different name, isn't it? And the way they are going to celebrate is also different, but what they are doing, they are celebrating that same festival
one festival but in a different way, in a diverse way. So here also it shows an example of unity in diversity, how we can celebrate one festival in a diverse way. Why? Because our country is a diverse country, isn't it? There is a diversity, there are so many types of people, so many religions, so many cultures, so many traditions, so many beliefs, isn't it? So according to that, according to their custom, according to their tradition, they are celebrating that festival. But the festival is one. The reason of the celebrating the festival is the beginning of the harvesting season, but they are celebrating in their different ways, and they have a different name also. Like in Punjab we call it Lori, in Assam we call it Bihu, isn't it? And in Kerala we call it Pongal, in Tamil we call it Pongal, in Kerala we call it Makara Vilaku, isn't it? See here, names are given, okay. See, in North India it is Makar Sankranti, here in Gujarat it is Uttarayam, isn't it? So in this way, the same festival has a different name, and how we are celebrating in a diverse way. So this is an example of a unity in diversity, okay, of our country. So here is a very interesting activity, okay. All of you do comment these about this activity. See, what is your favorite festival? Tell me, okay, tell me in the comment section, what is your favorite festival? For me, like, my favorite festival is Diwali. I like Diwali very much, okay. So, and how it is celebrated in your region, also tell how it is celebrated in your region, and do you know whether it is celebrated in any other parts of India, maybe under a different name? Like Makar Sankranti, we have a different name, isn't it? So you comment down your favorite festival, and also if it is named with a different name, if they have a different name in other parts of India, do mention about it also, okay, so that we will come to know about our favorite festivals also, isn't it? So it will be interesting. So don't forget to comment down in the comment section, and also don't forget to like this video and subscribe my channel and share with your friends, okay. I need your support now. Okay, and again, during October, November, many major festivals takes place in India. Make a list of the few main ones and their various name in different parts of the country. Like, say, from October to November, which festival comes? Major festival, Durga Puja and Diwali, isn't it? So if there is any other festival in your region, you make a list and you can write it down, okay, and can mention it in the comment section also. So that was all about festival. Now let us see about an epic spirit, okay, about literature, about साहित्य के बारे में हम देख लेते हैं कैसे यूनिटी है साहित्य में, लिटरेचर को लेके यूनिटी कैसे है, लेकिन यूनिटी के साथ साथ ये डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी कैसे, एक ही चीज़ को वो कैसे अलग अलग तरीके से वो लिखते हैं, वो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ओके. See, literature offers us another fine illustration of unity in diversity. So how we are going to check that out, okay. तो लिटरेचर हमें ये बताता है कि, और एक एग्जाम्पल है लिटरेचर में भी कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इंडियन लिटरेचर आर एक्सट्रीमली डाइवर्स. देखो, आप इंडियन लिटरेचर को आप देखोगे वो बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, बहुत टाइप्स के आपको लिटरेचर मिलेंगे, अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप्स के आपको लिटरेचर मिलेंगे, वेराइटीज़ ऑफ लिटरेचर्स मिलेंगे, ठीक है. एंड अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन दी वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज़्यादा लिटरेचर भी यहीं से है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स लिटरेचर, मतलब डिफरेंट तरीके से, हर किसी की भाषा अलग है, हर किसी के वहाँ पे रीजन अलग है, उसी हिसाब का वो लिटरेचर होता है. जैसे बंगाल में अलग होता है, इधर नॉर्थ इंडिया में अलग होता है, फिर साउथ इंडिया में उनका अपना लिटरेचर है कि नहीं. तो ऐसे बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. तो over centuries, despite difference in language, techniques, etc., they have shared important themes and concerns. Who has not heard of the Panchatantra? For Panchatantra, okay, this is a very famous book which contains lots of stories, isn't it, especially for kids. And if you have a habit of reading books and story books, you do try to read this Panchatantra, okay. This is very famous. You will find so many famous stories there, and this Panchatantra has been it has been taken an example also, like it has been widely used. It has been written in India, but it has been translated over so many languages, and it has been read on overseas also, means in other foreign countries also, okay. So what does we have under this Panchatantra? We have this collection of delightful stories with animals as the main characters, teaches us important life skill.
So here in Panchatantra you will find stories, okay, collections of delightful stories which will teach you moral story, sorry, okay, moral lesson also, okay, like what is good, what is bad, okay, how you have to respect your elders and what is your duty, about all those things, okay, about some moral lessons. It is there, the stories are related with that, and their main characters are mainly what, who, animal, like tiger, it may be tiger, it may be elephant, it may be fox, it may be dog, it may be monkeys, okay, and it teaches so many important life skills to us. So if you have time, you do start reading story books, because now is the time of reading so many story books, and you will come to know so many things after reading this story. You will come to know about you will come to learn about so many different things, okay, about life. तो यहाँ पे देखो लिटरेचर पे कैसे डाइवर्सिटी है, इसको लेके यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसके, कौन सी किताब के दिया हुआ है, पंचतंत्र के। देखिए पंचतंत्र के बारे में तो हम सब ने सुना ही होगा, आपकी इंग्लिश जो पूर्वी इंग्लिश है उसमें भी आपको ये स्टोरीज़ वगैरह देखने को मिलेगी उस पर। तो यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, पंचतंत्र जो है संस्कृत में लिखा है, हिंदी में लिखा है इंडिया में, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किया गया है दूसरे लैंग्वेजेस में भी, ताकि दूसरे लोग भी इसको पढ़ सके। और यहाँ पे स्टोरीज़ किस चीज़ की रहती है, बहुत ही अच्छी स्टोरीज, छोटी स्टोरीज रहती है। और यहाँ पे जैसे एनिमल्स को एक मेन कैरेक्टर, जानवर वगैरह उसके मेन कैरेक्टर रहते हैं। आपने जैसे कार्टून्स वगैरह में भी देखे होंगे ना, जैसे वहाँ पे ज़्यादातर कैरेक्टर कौन रहते हैं, एनिमल्स ही रहते हैं। तो ऐसे ही ये, जैसे कि अगर किसी शेर का कहानी होता है, कभी लोमड़ी की कहानी होती है, कभी बिल्ली की कहानी होती है, कभी बंदर की कहानी होती है, ऐसे करके बहुत सारे कहानीज़ होते हैं पंचतंत्र में, है कि नहीं। तो अगर आप भी पढ़ते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते हो तो भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत अच्छी आपको सीख देती है, एक मोरल लेसन आपको टीच करती है। ये स्टोरीज़ के थ्रू आपको पता लगता है कि अच्छा ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, गुड एंड बैड थिंग्स के बारे में यहाँ पे इस अब स्टोरी में अब ये स्टोरीज से आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टोरीज़ लिखने के बहुत ही, देखिए स्टोरीज़ जो है बहुत डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, टेक्निक्स अलग होते हैं, लेकिन क्या है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या शेयर करते हैं, उनका थीम एक होता है, कंसर्न एक होता है। थीम और कंसर्न क्या होता है, आपको क्या लेसन वो देंगे, ठीक है, आपको क्या सीखने को मिलेगा उसमें से, ठीक है। तो थीम एक ही मतलब रहता है, मतलब इम्पोर्टेंट थीम्स रहता है, एक ही नहीं रहता, इम्पोर्टेंट थीम्स और कंसर्न रहता है कि आप क्या जानोगे पढ़ के, इसको पढ़ के आप क्या जानोगे, क्या आप सीखोगे, ऐसे करके, ठीक है। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 years old, but its stories have been adapted in almost every Indian language. See, ये जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट जो पंचतंत्र के बारे में, जो ये संस्कृत जो है ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना है, लेकिन ये जो स्टोरी है सारे लोगों ने अपनाया हुआ इसको, एवरी इंडियन लैंग्वेज, सारी इंडियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, और इसको अपनाया गया है। और जैसे स्टोरीज़ वगैरह हम सुनते हैं ना, जब हम छोटे होते थे तो दादी वगैरह हमें स्टोरी सुनाती थी, कभी लोमड़ी की स्टोरी सुनाती, कभी हाथी की, कभी बिल्ली की। तो ऐसे ही ये स्टोरीज़ है, ओके, ये सारी स्टोरीज़ जो पंचतंत्र में होती है। इनफैक्ट दे हैव ट्रेवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर भी रहती है, ठीक है। सी दिस टेक्स्ट अबाउट दिस पंचतंत्र, दिस वॉज ओरिजिनली इट इज़ रिटन इन संस्कृत, ओके, बट इट हैज़ बीन adapted in almost every Indian language, means it has been translated in every Indian languages, and people have adapted it, people have read about it, because it is very interesting and it is very fascinating as well. And this is at least 2200 years old stories. See, these are legends, you can say, isn't it, stories which are which has been passed from one generation to another generation. And they have also traveled beyond India as well, mean foreign countries also, all the way to the Southeast Asia, the Arab world and the Europe. So ये जो stories है पंचतंत्र के कहाँ पे और इसके बारे में गया है कि साउथ ईस्ट एशिया की साइड में इसके बारे में, आप वहाँ के बच्चे भी इसके बारे में सुनते हैं, स्टोरीज़ के बारे में सुनते हैं, अरब वर्ल्ड्स में भी, ठीक है, और यूरोप में भी। तो inspiring new collections of stories on the way. It is estimated that about 200 adaptation of the Panchatantra existed in more than 50 languages. देखो 200 प्रकार के, जैसे एस्टिमेटेड यहाँ पे है कि 200 प्रकार के पंचतंत्र एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 200 प्रकार के पंचतंत्र एग्जिस्ट करते हैं, और कितने लैंग्वेजेस में, 50 लैंग्वेजेस में। तो ये देखो कितना ज़्यादा मात्रा में इसको पढ़ा जाता है। लेकिन देखो है तो ये एक ही पंचतंत्र, कहानी तो ये पंचतंत्र है जो कि एक सीख देता है, आपको एक मोरल लेसन देता है। लेकिन देखो एडाप्टेशन इसकी कितनी है, 200, इतना डाइवर्सिफाई है ये। और फॉर लैंग्वेज कितने लैंग्वेज में लिखे गए, 50 लैंग्वेज में, कितने डाइवर्स वे में इसमें अलग अलग तरीके से इसको लिखा गया। लेकिन है तो वो यही कहानी, एक ही कहानी, जो कि पंचतंत्र। तो ऐसे ही इसमें क्या आ गया,
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विभिन्नता, है कि नहीं। सो दिस इलस्ट्रेट्स हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरी हैज़ बिकम मैनी। देखो एक ही कलेक्शन है पंचतंत्र, लेकिन एक कलेक्शन को इन्होंने मैनी कैसे बनाया। देखो 200 एडाप्टेशन है अलग अलग टाइप्स में, फिर इन्होंने अडाप्ट किया हुआ है अपने हिसाब से, और फिर अपने हिसाब से फिर इन्होंने अपने लैंग्वेज में फिर इन्होंने लिख दिया, लेकिन है तो वो एक ही कलेक्शन, कौन सा, पंचतंत्र। सी हियर how this Panchatantra justifies unity in diversity is that, see, this Panchatantra has been inspired so many people in the world, and they are looking forward for their new collections as well, okay, new stories as well. And it has been estimated that around 200 adaptations of Panchatantra existed, which has been written in around 50 languages. So this shows that, see, the one collection that is the Panchatantra, isn't it, of stories has become many. How? Because it has 200 adaptation and it has been written in more than 50 languages. So it justifies, in this way it justifies unity in diversity. So from one text, one collection, how it can be produced to, how it can be adapted and produced by many, isn't it? It is one text, but it has been adapted and produced and written by so many other peoples, isn't it? So in this way it becomes unity in diversity. So another epic we are going to see here, okay, दूसरा हम देखेंगे, और जो हमारे दो famous epics है, see we have 2 epics, isn't it? And what is epic? Epic का मतलब क्या होता है, एक जो लंबा poem होता है, a long poem generally narrating the adventures of heroes and the other great figures of the past. जो कि poem होता है जो क्या करता है, narrate करता है, जो great heroes वगैरह जो war वगैरह में जाते हैं, वो कैसे अपना fight वगैरह करते हैं, उसके बारे में जो narrate करता है, जो एक बहुत ही लंबी poem होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, epics बोलते हैं। तो हमारे 2 famous epics कौन से हैं, आप सबको तो पता ही होगा, जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, जब हम छोटे होते से हम सुनते आ रहे हैं, सदियों से चला आ रहा है, ठीक है, रामायण और महाभारत। इस रामायण और महाभारत में भी कैसे एक एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, उसके बारे में हम यहाँ पे आगे देखेंगे, ठीक है। सी हियर one of the most striking case apart from this Panchatantra, okay, it is however that of India's 2 epics. Then what is epic? It is generally a very long poem. It has been written about narrating the great adventures of hero, how they have fight in the war, isn't it, how they have proved themselves, about their past, okay, these stories about them. It's not stories actually, it is a very long poem. It is written in the form of a poem, okay. So here we are going to discuss about 2 epics, that is Ramayana and Mahabharata, how these 2 epics also prove to be unity in diversity, one in many or many in the one, isn't it, many in the one. So देखते हैं इसको। These 2 Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original version, narrated the stories of heroes who fight to re-establish dharma. See, these 2 long Sanskrit poems, it has been written in Sanskrit, okay, this Ramayana and Mahabharata. So if you write together, okay, these 2 poems, you will fill more than 7,000 pages. So just imagine how long it is, isn't it, in their original version. And these, they narrated the stories of heroes who fight to re-establish dharma. See, both Ramayana and this Mahabharata, okay, why are these, in which reason is this epic related? It has been related with the re-establishment of dharma. In the case of Ramayana, it has been this Ram wife, that is Sita, was been kidnapped, isn't it? Why? By whom? By the demon Ravan. So how Ram destroyed Ravan, isn't it? It is story about that, and how he re-established the dharma, isn't it, the right thing. Dharma means the right thing, okay. Dharma here it is not related with your religion, it is doing the right thing, doing your duty. And in Mahabharata also, how they have re-established dharma? By killing all these Kauravas, isn't it? By whom? By the Pandavas, with the help of Krishna, isn't it? So it is all about that. So how we are going to see how this makes unity in diversity. देखो यहाँ पे जो ये 2 एपिक्स है, जो 2 पोइम्स है, जो संस्कृत पोइम है, अगर इनको एक ही साथ लिखा गया तो ये 7,000 पेजेस से भी ज़्यादा, 7,000 पेजेस के करीब ये फील हो जाएंगे, मतलब इतना लंबा है ये एपिक, ओके। और ये देखो स्टोरी किसके बारे में, पता है, हीरोज़ के बारे में बोलता है, वो जो फाइट करते हैं, किस लिए फाइट करते हैं, धर्म को वापस लेके आने के लिए। धर्म यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब सही चीज़ करना, ठीक है, जो आपकी ड्यूटी है वो चीज़ करना। ड्यूटी आपकी जो धर्म होती है ना, एक्चुअल मीनिंग ऑफ धर्म इज़, जो एक्चुअल मीनिंग है धर्म का वो क्या है, सही चीज़ करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, सही चीज़ करना और अपनी ड्यूटी करना, वो है।
तो यहाँ पे ये सही चीज़ को, राइट थिंग को कैसे रीएस्टैब्लिश करते हैं, ये दो एपिक में उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि रामायण में हम सब जानते हैं वहाँ पे सीता जी का हरण हुआ था, तो राम जी कैसे लक्ष्मण और हनुमान के मदद से वो उस रावण को मार गिराते और सीता जी को वापस लेके आते और फिर धर्म को रीएस्टैब्लिश करते, उसके बारे में है ये एपिक। और दूसरा जो महाभारत है, यहाँ पे हमने देखा कैसे एक महाभारत बल्कि एक युद्ध होता है, बहुत ही बड़ा, मतलब बड़ा है कि नहीं, तो बहुत ही बड़ा युद्ध होता है किसके बीच, कौरव और पांडवों के बीच। और पांडव के साइड कौन रहता है, कृष्ण जी रहते हैं, वो उनके हेल्प करते हैं और जीत किसकी होती है, पांडव की होती है। क्यों, क्योंकि सच्चाई उनमें थी। और वो क्यों उन्होंने ये युद्ध छिड़ा था, तो धर्म को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, राइट थिंग्स को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो कौरव में जो सबसे बड़े थे, जो दुर्योधन थे, आपने सुना होगा उनका नाम, वो काफ़ी दुष्ट थे और वो काफ़ी ऐसे काफ़ी बहुत चीज़ ऐसे करते थे जो कि सही नहीं थी। तो उस चीज़ को सही करने के लिए ये युद्ध लड़ा गया। तो कहा जाता है कि द्रौपदी के जो वस्त्र हरण हुआ था उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है, चिंगारी वहाँ से लगी, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही ये युद्ध का ऑलरेडी ये हो चुका था, क्योंकि जो दुर्योधन और कौरव थे वो काफ़ी दुष्ट थे। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये दोनों जो हमारे जो एपिक्स है, जो हमारे ये जो है कथा, ये कैसे यूनिटी लेके आती है, डाइवर्सिटी में कैसे यूनाइट है, ठीक है। उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे। इन द महाभारत द पांडवस, तो मैंने जैसे आपको बता दिया था ना, द पांडवस विथ कृष्णस हेल्प फाइट देयर ओन कजिन्स कौरव्स टू रिकवर देयर किंगडम। तो ये पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई होती है और पांडव की मदद कौन करता है, कृष्ण जी करते हैं, है कि नहीं। और इन द रामायण Rama with the help of his brother Lakshman and of Hanuman defeats the demon Ravana who had kidnapped his wife Sita. So here, which I have already explained you, isn't it? So about these two epic, तो मैंने आपको explain already कर ही दिया है वो कैसे fight करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे महाभारत में वो अपने kingdom को recover करने के लिए, क्योंकि जो युधिष्ठिर है वो सब कुछ हार जाते हैं, जो सबसे बड़े वो भ्राता रहते हैं, जो सबसे बड़े ब्रदर रहते हैं, सब कुछ हार जाते हैं, वो द्रौपदी को भी हारते लास्ट में, तो इसलिए उनका वस्त्रहरण होता है वहाँ पे, है कि नहीं। तो इसी चीज़ को लेके ये उनके किंगडम को वापस पाने के लिए, राइट थिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए, धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए युद्ध चलता है ये। These stories contain many shorter ones than focus on values and constantly ask question about what is right and what is wrong. So ये जो stories है ये बहुत सारे इनमें बहुत इनका फोकस कहाँ पे है, ज़्यादातर बहुत सारी वैल्यूज़ में, क्योंकि लाइफ में क्या है, जैसे लाइफ को कैसे जीना चाहिए, बहुत सारे आपको वैल्यूज़ मिलते हैं ना। अगर आपने देखी है रामायण या फिर महाभारत, जो कृष्ण जी देते हैं बहुत सारे ऐसा ज्ञान देते हैं कि ये चीज़ ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसे होता है, ऐसे करके, तो वैल्यूज़ में फोकस करते, कॉन्स्टेंटली आस्किंग व्हाट क्वेश्चन, सवाल जवाब बहुत करके। अगर आप सवाल नहीं करोगे तो आपका जवाब मिलेगा ही नहीं, तो आप सवाल ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। तो इस चीज़ को ये ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी हियर दिस टू एपिक्स, ओके, दिस स्टोरी दे कंटेन, they focused more on the values. Okay, see, if you have watched Ramayana and Mahabharata, you will come to know, okay, so many values are been given, so many knowledge has been given, like they will be saying, okay, what is the good part, what you should be doing, what is your duty, about all those values of life. It has been taught very properly, okay, and by constantly asking questions. See, if you don't ask question, how will you know what is right and what is wrong? If you are going to ask question, then you'll come to know what is right, isn't it? So here there are so many questions which is related with rights and wrongs, okay, what is right and what is wrong. So here there is a painting. See, seeing this painting, what you can depict, इस painting को, इस चित्र को देख के आपको क्या लग रहा है, देखो, जैसे अगर आपने रामायण देख रखा है तो आपको देखते ही पता लग जाएगा ये क्या लिखा है। देखो यहाँ पे सीता जी किडनैप हो रहे, किसके हाथों, रावण के हाथों, 10 सर वाले रावण के हाथों, है कि नहीं। जैसे ये लेके जा रहा है यहाँ से और किडनैप हो रहे, जैसे ये जंगल में रहते थे ना, वनवास के टाइम में अपनी कुटिया में रहते थे अंदर, तो वहाँ से ये अकेली थी। तब लक्ष्मण ने क्या किया था, एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखा था, लेकिन ये एक भिक्षुक के रूप में, रावण जो है एक भिक्षुक के रूप में आया यहाँ पे, और क्या किया उन्होंने, सीता जी को उस रेखा को पास करने के लिए मजबूर कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, ये किडनैप करके ले गया, हरण करके लेके चला गया, है कि नहीं। See here, what does this painting depicts? It is a scene, okay, it is an episode from the Ramayana, okay. This is from the Himachal Pradesh, okay. So here what you can see, this is the demon Ravan, okay. He has came in the changing his appearance, isn't it? He have changed his appearance and he became like some rishis who is coming to ask some food, isn't it? So here
Sita ji was alone in the house, okay, and Lakshman also went out by saying that he have demarcated one line, and that line is famously known as Lakshman Rekha, isn't it? And he have asked Sita ji not to go out and not to cross that line. But here this Ravan, like he have changed his appearance, and he have came and he have asked for food, and Sita ji was forced to cross that Lakshman Rekha, because when this Ravan was trying to cross that Rekha, he was not able to cross it because there were some magics also, isn't it? So that in order to protect Sita ji. So, but what happened? He was success to let Sita came out of that demarcation, and what has done? So he have taken him, isn't it? See, he have kidnapped Sita ji. This Ravan with the 10 heads, isn't it? He have kidnapped Sita ji. So this is that painting, okay. In a class discussion, try to identify the episode depicted in the painting show. So we have already discussed, isn't it? हमने already discuss कर लिया इसके बारे में. For more than 2 millenniums, 2000 सालों तक, okay, these two epics have been translated or adapted into regional literatures in India and beyond. So 2000 सालों तक, 2000 सालों से, okay, ये दो मतलब बहुत, ये जो दो एपिक्स थे, जो रामायण और महाभारत है, इनको बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, बहुत सारे रीजन में इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है, और इनको अडाप्ट भी किया हुआ और इनको ट्रांसलेट भी किया. इंडिया में भी बहुत सारे आपको जैसे साउथ में अगर आप जाओगे तो उनका एक अलग महाभारत, इनका एक अलग वर्जन ऑफ महाभारत आपको देखने को मिलेगा. नॉर्थ में जाओगे उनका एक अलग महाभारत देखने को मिलेगा. वेस्ट में जाओगे उनका एक अलग महाभारत देखने को मिलेगा. ईस्ट में जाओगे उनका एक अलग महाभारत देखने को मिलेगा. तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. कैसे, मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है. See here, for more than 2 millenniums, okay, for more than almost 2000 years, isn't it? These two epics have been translated and adapted by so many regional literature in India as well as beyond, as well as in the foreign countries outside India, isn't it? In addition, there are countless folk versions of them. A few years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu along and counted about 100 versions of the Mahabharata that have come down to us in folklore forms. Imagine what the number might be for the whole of India. See, as I have told you, like they have their own version of Mahabharata as well as Ramayana. Okay, so a few years ago, a scholar have also conducted a survey. In a survey, what we have known, and that is only for the region of Tamil Nadu, only for one reason. Okay, only in the one reason. So about hundreds of versions were found of Mahabharata. Okay, there were varieties. See, it is about Mahabharata. The story is same. The story is same, that okay, the Pandavas will be fighting the Kauravas, but the way of telling them, the way of depicting the stories is different. So they have their own version down there. Okay, so just imagine like how many would be for the whole of India. Only along in Tamil Nadu it is around 100 versions. Then just imagine for India, like it might be more than thousands to 2000 versions, isn't it? So यहाँ पे देखो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, हर एक जगह पे उनकी एक अपनी कहानी रहती है. तो रामायण को लेके भी, महाभारत को लेके भी अपनी उनकी कहानी रहती है. कहानी एक ही होती है लेकिन वो अपने तरीके से उसको बताते हैं. जैसे वो राम जब उनके यहाँ पे विजिट किया तो वो क्या क्या हुआ था, वो स्टोरी, उस पहलू को वहाँ पे वो डालते. तो ऐसे करके वो अलग बन जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे एक सर्वे हुआ था बहुत सालों पहले, तो उस पर क्या पाया गया, तमिलनाडु की जगह पे ही एक सर्वे हुआ था. तो सिर्फ तमिलनाडु में ही ये पाया गया कि जो महाभारत का है वहाँ पे आपको 100 से भी ज़्यादा वर्जन्स आपको वहाँ पे मिले, 100 से भी ज़्यादा स्टोरीज आपको मिले महाभारत के रिलेटेड, अलग अलग उनके अलग अपने हिसाब से. ठीक है, तो इमेजिन करो कि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में, भारत में कितने इसके वर्जन्स होंगे. 1000 2000 के भी ज़्यादा होंगे, है कि नहीं, क्योंकि वेस्ट में उनका एक अलग वर्जन है, नॉर्दर्न इंडिया में अलग वर्जन है, ईस्टर्न इंडिया में अलग वर्जन है, साउदर्न इंडिया में अलग वर्जन है. साउदर्न इंडिया में देखो तमिलनाडु अलॉन्ग, सिर्फ तमिलनाडु में भी हंड्रेड्स ऑफ है, तो बाकी केरला में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कितना ज़्यादा होगा, है कि नहीं. In fact, many communities have their own versions of the Ramayana and Mahabharata. They have also preserved legends connecting their own history with these epics. This is especially true of tribal communities in many parts of the India. देखो
एवरी कम्युनिटी, ओके, एवरी कम्युनिटीज़ के उनका, जैसे मैंने बताया ना, उनका एक ओन वर्जन है महाभारत का और रामायण का, एंड उन्होंने उसको अच्छे से प्रिजर्व कर रखा है। जो स्टोरीज़ है, जो लेजेंड्स है, ओके, जो स्टोरीज़ कनेक्टिंग है, जो उनकी हिस्ट्री है, वो उसको अच्छे से प्रिजर्व कर रखा है। कैसे प्रिजर्व कर रखा है? जैसे ओरली ट्रांसमिट करके, ओरली ट्रांसफर्ड करके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। और ओरली पहले ट्रांसलेट कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया, ट्रांसमिट कर लिया, नॉट ट्रांसमिट कर लिया। उसके बाद क्या किया, फिर बहुत अभी कुछ साल पहले है ये सब कुछ लिखा गया, ठीक है। जैसे कि देखो रामायण भी, जैसे वाल्मीकि के रामायण एक है और एक तुलसीदास की रामायण है। दोनों आप रामायण देखोगे थोड़ा हल्की फुल्की आपको चेंजेस मिलेंगे, लेकिन कहानी क्या है वहाँ पर? कहानी तो एक ही है। राम किसको बचाते हैं? राम ने किसका वो करना है, विनाश करना है, रावण का विनाश करना है। रावण सीता जी को किडनैप करते हैं कि नहीं, लेकिन कहानी एक ही है, लेकिन वो बताने का तरीका फिर, या फिर कुछ ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ जो है आपको अलग मिलेंगे, ठीक है। कहानी एक ही है लेकिन अलग तरीके से उसको सुनाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखो कहानी एक ही है लेकिन उसको अलग तरीके से सुनाया, डाइवर्स वे पे सुनाया, तो डाइवर्सिटी मैनी बन गया ना, तो मैनी इन दी वन, ओके। बहुत सारे कुछ निकल आए एक ही चीज़ से, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई होप आपको समझ आया हो ये। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेंगे ट्राइबल कम्युनिटी का, ठीक है। Okay, see, as I have told you that they have their own, every region they have their own version of Ramayana and Mahabharata. So this history, okay, and they have also preserved the legends, the stories connecting with their own history, and they have transmitted, okay, and they have transmitted from one generation to another generation, and this is especially true for the tribal community. So let us see, okay. In many parts of the India, such as the Bhils, the Gonds, the Mundas, these are from the Jharkhand, isn't it? And many more. Most tribes of India, Northeast and Himalayan region, including Kashmir, have their own version of one or the other of the two epics, or both. Say, they have their own version of epics. See how it becomes unity in diversity here. They have their own version of epics, they have their own way of telling. The story is one, it is about Ramayana and Mahabharata. In Ramayana, what you will see that Ram have killed Ravan. Why? Because he have kidnapped his wife, isn't it? The story is same, but the way of telling them will be different. So same story, different ways, means unity in diversity. I hope you have understood. So same case with Mahabharata also, okay. There will be slight difference, they have their own version, okay. These tribal adaptation are transmitted orally. See, दे आर बिन ट्रांसमिटेड ओरली, वो ओरली ट्रांसमिट करते थे, ठीक है। वो जैसे एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को उसके कहानी के बारे में सुना दिया, फिर दूसरे जनरेशन ने फिर तीसरे जनरेशन को सुना दिया। जैसे कि आपको रामायण की कहानी आपके मम्मी पापा ने सुना लिया, ठीक है, सुनाया है, आपको अच्छे से बताया हुआ है, और आपके मम्मी पापा को किसने सुनाया? उनके मम्मी पापा ने, और उनके मम्मी पापा को किसने सुनाया? फिर उनके मम्मी पापा ने। ऐसे करके ट्रांसमिट हुआ, नॉट लेट, ट्रांसमिट हुआ, एक ऐसे गया है ये, ठीक है। Along with legends on how the heroes of Ramayana and Mahabharata, generally any one of the 5 Pandavas, their wife Draupadi, but also sometimes their cousins and adversary Duryodhan, visited their tribes' respective regions. See, और ये जो महाभारत की जो ये कैरेक्टर्स है, ओके, यहाँ पे देखो ये कैरेक्टर्स है ना, तो इनके बारे में वो जैसे कैसे इन्होंने स्टोरीज बताया उनके बारे में, जब उनके रीजन में आए, उनकी जगह पे आए, तो ये कैसे क्या हुआ था, क्या किया था इन्होंने, ठीक है। द्रौपदी जब आई थी पांडवों के साथ, ये दुर्योधन जब आए थे उनके कजिन्स वगैरह, जैसे सो कजिन्स मतलब कौरव्स, इजंट इट, कौरव जो 100 कौरव थे, तो उनके रीजन में जब उन्होंने विजिट किया था तो ऐसा क्या हुआ था, उस चीज़ को भी ये उस उनके वर्जन पे ये इसको डालते हैं और उस चीज़ को ये ये बताते हैं, ठीक है। उस उनके रीजन में जब आए थे तो क्या हुआ था। ऐसे ही ये जो महाभारत के कैरेक्टर्स है और जो रामायण के जो कैरेक्टर्स है, सारे दुनिया में, ओके, सारे इंडिया में, नॉट दुनिया, इंडिया में सभी जगह ये पहुँचे हुए, तो सभी जगह इनके एक अलग अलग कहानी है। जैसे एक पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं किसी सेलिब्रिटी का एग्जांपल ले लेती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हम रणवीर कपूर का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। रणवीर कपूर जैसे फॉर एग्जांपल उसने दिल्ली में पढ़ाई की, जस्ट एग्जांपल, ओके, पढ़ाई की नहीं है लेकिन मैंने बस बताया है ऐसे एग्जांपल के लिए। अगर उसने दिल्ली में पढ़ाई की है, जब वो दिल्ली के रीजन में चला गया, तो दिल्ली के लोगों के लिए वो कैसा है, वो दिल्ली के लोग उसके अलग तरीके से बताएंगे। और जब वो मुंबई में आया, जब वो हीरो वगैरह बना, मूवीज़ वगैरह उसकी चलने लगी, फिर उसकी तब अलग कहानी है कि नहीं। और फिर वो जब साउथ इंडिया में आया तो फिर उसकी एक अलग कहानी होगी, वहाँ पे अगर वो कुछ टाइम रहा या फिर उसकी अलग कहानी, वहाँ के लोग उसको अलग, उसकी
उनके अपने हिसाब से उसके बारे में लिखेंगे। तो वो एक ही बंदा है कि नहीं, है तो वो एक ही बंदा, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसके बारे में बताया गया। तो ऐसे ही रामायण और महाभारत भी, जो इनके कैरेक्टर्स थे, बहुत सारी जगहों पे गए इंडिया पे, अलग अलग जगह पे इन्होंने विजिट किया। जिस भी जगह पे इन्होंने विजिट किया उसी तरीके का उन्होंने स्टोरीज़ वहाँ पे बनाए, उन लोगों ने वहाँ पे क्या क्या हुआ तो उसी हिसाब का उन्होंने स्टोरी बनाया। फिर दूसरी जगह पे उन्होंने उसी हिसाब का स्टोरी बनाया। तो ऐसे करके अलग अलग हो गया, एकता में विभिन्नता। ओके, हाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सी हियर, let me again explain in English this part. Okay, see, as we have been told that they have their own version of Mahabharata and Ramayana, isn't it? So the characters, especially the characters of Ramayana and Mahabharata, they have visited all over India. Okay, they have visited all over India, and they visited their respective region, their tribe regions. They have their own story, how they have visited, when they have visited, and what they have done. So just like that, if they have visited another North Indian parts, again they will have their own version. Again the western part, they will have their own version. So well, wherever places they have visited, they got the versions according to that. So it has been written here. Okay, you will come to know. For example, like I have given of a celebrity, isn't it? Celebrity Ranveer Kapoor. So if we are going to make a story about Ranveer Kapoor, the story is this: you are going to make about Ranveer Kapoor only, but if he have stayed in so many different regions, so according to the regions, the people with whom he have stayed, for example in Delhi he have stayed, or in Mumbai he have stayed, or in South India he have stayed, okay, South Indian state he have stayed, then Delhi people will have different version of story about Ranveer Kapoor, isn't it? And Mumbai people will have a different version of story about Ranveer Kapoor, and South Indian people will have a different version of story about Ranveer Kapoor. But it is about Ranveer Kapoor, isn't it? That is one but different story. So just like that, one with different, unity in diversity. I hope you have understood. We are about to end the chapter. Okay, we are in I think we are in the last paragraph. So the anthropologists, see, we have already learned, isn't it? Anthropologist casing, and we have been mentioned also here, the people of India, the project, isn't it? Which was referred earlier in this chapter only. In the case of Mahabharata, what he have mentioned, okay, के सिंह ने, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने एक डाटा बताया था ना कि इतने 1.4 मिलियंस हैं लोग इंडिया में। तो उन्होंने इन केस ऑफ महाभारत में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? There is hardly any place in the country which the epic heroes such as the Pandavas did not visit according to folklore. तो लोगों के कहने के हिसाब से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ ऐसी कोई जगह ही नहीं है इंडिया पे जहाँ पे महाभारत के जो कैरेक्टर्स है इन्होंने वहाँ पे गए नहीं हो। सब जगह गए, पांडवर्स के स्पेशली पांडव सारे जगह पे गए हुए। फोल्कलोर मतलब पीपल जनरल, इजंट इट, जो पीपल लोगों के कहने के हिसाब से। एंड सेम मे बी सेट ऑफ द रामायण, तो रामायण के केस में भी सेम है। राम, सीता और लक्ष्मण जी हर जगह, हर एक कोने पे गए हैं इंडिया के। तो हर एक जिस जगह पे भी वो गए हैं उसी हिसाब से उसी जगह की स्टोरी है उनके बारे में। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया था ना ऑलरेडी, I have already explained you, okay, about this. Over the centuries, perhaps more than any other text, these two epics created a dense web of cultural interaction across India and many parts of Asia. Another example of unity in diversity. So these two epics, they have interacted. They have created a great, okay, dense means great, isn't it, measure, great web of cultural interaction across India. They have went to all over India and there has been interaction with the other cultures, isn't it, and in many parts of Asia. So this is another example of unity in diversity. I hope आपको समझ आ गया हो. To further illustrate the theme of this chapter, we could have continued our journey and turned to more facets of Indian culture. For instance, in Indian classical arts, including classical architecture, both diversity and unity are easily noticeable. You will study this field through the art करिकुलर एरिया। देखो, जिस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया, फूड के बारे में हमने डिस्कस किया है, एक ही चीज़ को कैसे अलग अलग तरीके से वो बनाते हैं। फिर इसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया, कपड़े के बारे में डिस्कस किया। तो उस पर साड़ी, जैसे एक ही साड़ी को अलग अलग तरीके से कैसे वो पहनते, उसके बारे में फिर हमने लिटरेचर में डिस्कस किया। तो यहाँ पे भी एक ही स्टोरी को कैसे अलग अलग तरीके से बताया गया, कैसे दर्शाया गया है, तो कैसे यूनिटी और डाइवर्सिटी है। तो ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी है किसके रिलेटेड, इंडियन क्लासिकल आर्ट्स के रिलेटेड,
क्लासिकल आर्किटेक्चर के रिलेटेड। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डाइवर्सिटी और यूनिटी देखने को मिलेगा। आर्किटेक्ट जो होते हैं ना हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह आप देखोगे, उस पर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पे आपको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से आपको नोटिस हो जाएगा। तो ये इसके बारे में आप और पढ़ोगे कहाँ पे, अर्थ करिकुलर एरिया में, ठीक है। सो इन द एंड वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी एज एन एनरिचमेंट बट नेवर लूज sight of the underlying unity which nourishes the diversity. These are very important lines. See what we have learned in this chapter, like India is a diverse country but we are celebrating the diversity by uniting isn't it, ekta mein vivinata. So we have been celebrating this diversity and enriching it and enriching and giving so much of enrichment. We have been respecting each other, isn't it? And we have also never lost the underlying unity, the oneness, okay, the oneness that we have never lost it. Instead what we have done, we have nourished this diversity by respecting each other cultures and by interacting with each other cultures. तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, जैसे कि इंडिया कल्चर जो है, जो डाइवर्सिटी है सेलिब्रेट करता है। तो ये डाइवर्सिटी को कैसे सेलिब्रेट करता है, देखो अगर इंडियन के लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट नहीं करते थे, एक दूसरे के कल्चर के रेस्पेक्ट नहीं करते, तो ये डाइवर्सिटी तो सेलिब्रेट होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ भी, कोई भी त्यौहार आता है, कुछ भी आता है, सारे लोग मिलके इसको सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं, जैसे दिवाली हर कोई सेलिब्रेट करता है। तो ऐसे हम जैसे वो जो सेलिब्रेट करते, एक बन के हम सेलिब्रेट करते हैं, जो यूनिटी है हमारे अंदर उसको हम कभी भी नहीं छोड़ते। इंस्टेड हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा हम नॉरिस्ट करते हैं डाइवर्सिटी के लिए। अलग अलग हमारे पास एकता में विभिन्नता, ओके, इन शॉर्ट एकता में विभिन्नता। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। So this was the end of the chapter, okay. So we have completed our chapter number 8 also, and do comment okay, that how do you find the class, okay. And also yes, don't forget to comment your favorite festival, and don't forget to like, subscribe and share my channel, okay. Share with your friends because I need your support. I need your support now, okay, so that I can bring more such good videos again, okay. So we'll see again you in my next class with our next chapter. Thank you everyone for listening to me.